Hello students, in this lecture we will discuss about the simplex method. In previous lectures we solved two problems on algebraic method and we discussed that the simplex method is actually an extension of algebraic method. See the question. Solve the following LPP by simplex method. Maximize z equal to 3x1 plus 2x2 subject to the constraints 3x1 plus 2x2 less than or equal to 18, 0 less than or equal to x1 less than or equal to 4, 0 less than or equal to x2 less than or equal to 6, and x1 and x2 are non-negative. So this question was asked for 8 marks. We are having 3 topics here: the simplex method, penalty method and dual simplex method. You will be having 2 questions from these 3 topics for 6 plus 8 or 8 plus 8 marks. Now see how to solve it using simplex method. So procedure क्या है? We need to write it in canonical form and then from canonical form the standard form. So what is the canonical form of LPP? Should be of maximization type only. तो यहाँ पर ये condition satisfy हो रहा है. RHS of each constant should be non-negative. Constants के RHS पर negative value नहीं होना चाहिए. So again this condition is satisfied here and all decision variables should be restricted. x1 and x2 cannot be negative. So all 3 conditions are satisfied here. So given LPP is already in canonical form. Now how to write it in standard form? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? हमको बस इनइक्वालिटीज को लिखना है एज इक्वेशंस. हाउ वी विल डू दैट? See the first inequality, 3x1 plus 2x2 less than or equal to 18. How to write it as an equation? आप simple example से समझ लीजिए. Suppose 2 less than or equal to 5 है. So how we will write it as an equation? We will write it as 2 plus x equal to 5. तो x क्या हो गया वहां पर? X will be 5 minus 2 means 3. So of course this x will be always non-negative. It cannot be negative. Okay, because this is already less than or equal to. So what we will do? We will add one variable in each inequality so that all will become equations. For example, in first, say we will be adding s1. So this will be 3x1 plus 2x2 plus s1 equal to 18. Similarly, in the second also we can add s2, so it will be x1 plus s2 equal to 4 and the third will be x2 plus s3 is equal to 6. तो यहां पर s1, s2, s3 फिर से क्या हो गए? नॉन नेगेटिव. These variables are called as slack variables. Just see the standard form of given LPP. So maximize z equal to 3x1 plus 2x2 as it is. You can observe that in each constant I am adding one slack variable, so all becomes equation. And these slack variables are absent in the objective function, so we can write them with the coefficient 0. क्योंकि ये values as it is हमको next step में simplex table में put करना है, तो जो भी variable absent है आप better है उसको 0 के coefficient के साथ लिख लीजिए. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3x1 plus 2x2 plus s1 plus 0s2 plus 0s3 equal to 18 and all decision and slack variables are restricted. Called as standard form of given LPP. अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है? Of course it is an algebraic method, लेकिन अब हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको जो algebraic method की limitations है यहां पर उनको ओवरकम करना है. मीनिंग क्या हो गया? हमने डिस्कस किया था अल्जेब्रिक मेथड में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी लार्ज. लाइक हाउ मेनी कंस्टेंट्स वी आर हैविंग हियर? 3 कंस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स वी आर हैविंग 5 वेरिएबल्स. सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी विल बी गेटिंग हियर? 5c3. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर वेरी लार्ज. ओके, तो अल्जेब्रिक मेथड का ये लिमिटेशन जो है हमको सिंप्लेक्स मेथड में ओवरकम करना है. नेक्स्ट क्या हो गया? अल्जेब्रिक मेथड से इनफिजिबल सॉल्यूशन भी मिल सकता है, तो हमको यहां पर इनफिजिबल सॉल्यूशन नहीं चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स बट आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होंगी बट हम प्रोसीजर अंडरस्टैंड कर लेंगे. इसको सॉल्व कैसे करना है उसके पीछे का कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे. सो सी द सिंप्लेक्स टेबल. आपके सामने पूरा टेबल आ रहा है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट होंगी. आप बेटर है पेन और पेपर लेके बैठिए और स्टेप बाय स्टेप राइट करते जाइए जो मैं बोल रहा हूं. सबसे पहले क्या करना है? टेबल के ये कॉलम्स बना लीजिए. वी आर हैविंग दीज मच कॉलम्स हियर.
then write these variables, decision and slack variables. So x1 and x2, and here s1, s2, s3. Then write here their coefficients in objective function. तो आप देख सकते हो x1 का कोएफिशिएंट है 3, x2 का कोएफिशिएंट है 2 और s1, s2, s3 के कोएफिशिएंट्स है 0. सो यहाँ पे लिखा हमने कोएफिशिएंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे cj. Then write these values, again coefficients of decision and slack variables from the constants. तो 3 कंस्टेंट्स है आपके पास. फर्स्ट कंस्टेंट से क्या आ गया देखिए 3, 2, 1, 0 और s3 भी एब्सेंट है तो 0. सेकेंड कंस्टेंट से x1 का कोएफिशिएंट 1, x2 का 0 और s1 और s3 का 0, s2 का 1. सिमिलरली फ्रॉम द थर्ड कंस्टेंट, और एक कॉलम हमने वहां पर RHS का बनाया, उस पर ये वैल्यूज 18, 4 एंड 6. तो RHS Z में एब्सेंट है, इसके लिए वहां पर ब्लैंक आ गया. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में Z है LHS पर, RHS पर ये वैल्यूज है, हमने वो यहां पर लिखी है. सो वी आर डन विद द फर्स्ट इटरेशन. फर्स्ट इटरेशन में क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स लिखना है. अब हम सेकेंड इटरेशन परफॉर्म करेंगे. तो अल्जेब्रिक मेथड ही है. मेथड क्या था अल्जेब्रिक में, आप रिकॉल कर सकते हो. अगर आपके पास है 5 वेरिएबल्स लेकिन इक्वेशंस है 3 ही, तो आप कैसे सॉल्व करोगे. यू विल सेट 2 नॉन बेसिक वेरिएबल्स टू 0 एंड यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर रिमेनिंग बेसिक वेरिएबल. तो 5 में से 3 बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे क्योंकि 3 ही इक्वेशंस है, और 2 होंगे नॉन बेसिक वेरिएबल जिनको हमको सेट करना है 0 पर. तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे डिसीजन वेरिएबल सेट करेंगे 0 पर, x1, x2, मतलब वो नॉन बेसिक हो गए और स्लैक वेरिएबल बन जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स. तो ऑफकोर्स फर्स्ट इटरेशन में आंसर हो गया x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, तो z भी हो गया 0. देन वी विल ट्राई टू कीप ऑन इंप्रूविंग दिस सॉल्यूशन. तो फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिक वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, दैट विल बी द स्लैक वेरिएबल्स. तो आप यहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. बेसिक वेरिएबल्स विल बी फॉर्मिंग कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस. मीनिंग क्या हो गया, यहां पर देखिए फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसके लिए आया, S1 के लिए, तो S1 विल बी द फर्स्ट बेसिक वेरिएबल. सिमिलरली S2 के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम है, S3 के लिए थर्ड कॉलम है, सो दे विल बी रिस्पेक्टिवली सेकेंड एंड थर्ड बेसिक वेरिएबल. यहां पे क्या वैल्यूज लिखी है, देयर कोएफिशिएंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज 0. ठीक है. अब CJ माइनस ZJ रो कंप्यूट करना है हमको नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने के लिए. CJ क्या है, कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ZJ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एवरी कॉलम विद द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल. डॉट प्रोडक्ट ऑफ एवरी कॉलम विद द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल. सी दिस, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कॉलम के लिए ZJ फाइंड करता हूं, तो क्या होगा 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1 plus 0 into 0 means ZJ is 0 for the first column. We need to subtract it from CJ, which is 3. So answer is 3 minus 0. Similarly for the second column, 0 into 2 plus 0 into 0 plus 0 into 1. So ZJ is 0, उसको subtract किया CJ से, तो आंसर आ गया 2. तो ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेप में ZJ की सारी वैल्यूज आएंगी 0, तो हम यहां पे आंसर में डायरेक्ट लिख सकते हैं CJ, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज है 0, तो ZJ फर्स्ट स्टेप में 0 आएगा. अब इस रो में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट. सो ओनली 2 पॉजिटिव एलिमेंट्स 2 and 3, उनमें से लार्जेस्ट लेना है. सो इन नेक्स्ट इटरेशन x1 विल बी द न्यू बेसिक वेरिएबल. मतलब अब x1 प्रॉब्लम के अंदर आ गया. ठीक है. अल्जेब्रिक मेथड में हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते थे, सारे वेरिएबल्स को ट्राई करते हैं बेसिक और नॉन बेसिक के लिए. यहां पे सबको नहीं करना है. कंडीशन क्या है, ओनली विच वेरिएबल, जहां पर है CJ माइनस ZJ का लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट. सो अब नया बेसिक वेरिएबल बन गया x1. x1 अभी नॉन बेसिक वेरिएबल था, सेट था 0 पर, तो हमको उसकी जगह दूसरा वेरिएबल चाहिए जो सेट करेंगे हम 0 पे. वो S1, S2, S3 में से कौन सा होगा, वो आइडेंटिफाई होगा रेशो से. तो अब रेशो कैसे फाइंड करना है, यू विल डिवाइड RHS बाय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एंटरिंग कॉलम. दिस कॉलम इज कॉल्ड एज एंटरिंग कॉलम, जहां पर है लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट. सो फर्स्ट स्टेप हो गया 18/3, दैट इज 6, देन 4/1, दैट इज 4, एंड देन 6/0 इज इंफिनिटी. सो आई एम राइटिंग हियर डैश बिकॉज रेशो में अब हमको रिक्वायर्ड है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट. तो नेगेटिव या इंफिनिटी आया तो हम सिंपली डैश लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए.
So two positive elements here 6 and 4, you can go for the smallest one. So next step में क्या होगा, now this will be called as leaving row. तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट S2 अब बन गया नॉन बेसिक वेरिएबल, मतलब अब S2 को सेट करेंगे 0 पे और वो रिप्लेस हो जाएगा X1 से, X1 हो गया नया बेसिक वेरिएबल, ठीक है। सो S1 और S3 एज इट इज, ओनली S2 विल गेट रिप्लेस बाय X1। यहां पे फिर से उनके कोएफिशिएंट्स लिख दिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब सेकेंड स्टेप में हमको वैल्यूज कैसे पुट करना है, आप यहां पे पहले देखिए एंटरिंग कॉलम और लीविंग रो, उसको जो एलिमेंट कॉमन है दैट इज कॉल्ड एज की एलिमेंट और पिवोट एलिमेंट। तो सबसे पहले हमको ये की एलिमेंट की रो यहां पर लिखना है सेकेंड इटरेशन में। कैसे? जस्ट बाय मेकिंग दैट की एलिमेंट एज 1। तो हम उसको 1 कैसे बनाएंगे, पूरी रो को हम डिवाइड करेंगे बाय की एलिमेंट। तो यहां पर तो की एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, सो दिस विल बी एज इट इज। तो ये सेकेंड रो हमने पूरा एज इट इज लिख दिया। अब बाकी के एलिमेंट कैसे लिखना है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये नए बेसिक वेरिएबल्स बन गए। और बेसिक वेरिएबल का कंडीशंस क्या है, दे विल फॉर्म कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। मींस S1 फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फिर X1 है तो उसके लिए मिलना चाहिए सेकेंड कॉलम, और S3 के लिए आपको चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो हमको बाकी का नहीं देखना है, सिर्फ X1 के लिए सेकेंड कॉलम ऑब्टेन कर लेना है, बाकी के आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ ये सेकेंड रो लिखा है जहां पे हमको 1 मिल गया, मतलब अब ये दोनों एलिमेंट को बनाना है 0। ये दोनों रोज यहां से लिखना है बाय मेकिंग दिस टू एलिमेंट 0 अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस 1। सो वी विल परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होगा, आप देख सकते हो थर्ड रो में 0 है ऑलरेडी यहां पर, ये फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये पूरा रो एज इट इज लिख दिया यहां पर हमने। अब इस 3 को बनाना है 0 1 की हेल्प से। तो सपोज ये आपका फर्स्ट रो है, ये है सेकेंड रो, तो मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होगा, R1 माइनस 3R2। यू कैन सी द ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेप हो गया 3 माइनस 3 मीन्स 0, then it is 2 minus 0 into 3, so 2 minus 0 is 2, then 1 minus 0 into 3 is again 1, then 0 minus 1 into 3 is minus 3, then 0 minus 0 into 3 is 0, then 18 minus 4 into 3 is 12, so 18 minus 12 is 6. Okay, so you will get the answer for that complete row। और ये ऑपरेशन कहां तक परफॉर्म करना है, RHS तक। अभी फिर से रेशो का कॉलम ब्लैंक है। सो वी आर डन विद द सेकेंड इटरेशन ऑल्सो। अब थर्ड इटरेशन परफॉर्म करना है या नहीं ये पता चलेगा फिर से Cj माइनस Zj रो से। सो वी नीड टू कंप्यूट द सेम रो अगेन। Cj क्या है, कोएफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और Zj क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एवरी कॉलम विद द कॉलम ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो आप बेसिक वेरिएबल्स जो है उनके लिए डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो, वो हमेशा 0 आएंगे। S1 X1 और S3 0 है तो उसके लिए डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो हमको बस ये दो वैल्यूज कंप्यूट करना है। तो मैं पहले Zj फाइंड कर रहा हूं सेकेंड कॉलम के लिए। सो इट इज 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, सो Zj इज 0। उसको माइनस किया Cj से तो आंसर मिल गया 2। सिमिलरली फॉर दिस कॉलम सी हियर 0 इंटू माइनस 3, 3 इंटू 1, 0 इंटू 0, तो आंसर आ गया 3 Zj के लिए। उसको सब्सट्रैक्ट किया Cj से तो 0 माइनस 3। अगेन इन दिस रो वी नीड टू आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। तो एक ही पॉजिटिव एलिमेंट है यहां पर, वो हमारी चॉइस हो गया। अब फाइंड करना है रेशो, क्योंकि हमको मिल गया एंटरिंग कॉलम तो चाहिए करस्पॉन्डिंग लीविंग रो। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड RHS बाय वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम, 6/2, देन 4/0, देन 6/1। और रेशियो में क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एलिमेंट। सो 3 और 6 आंसर मिला है हमको, उसमें से स्मॉलेस्ट। तो लीविंग रो मिल गया ये फर्स्ट वाला, सेकेंड कॉलम हो गया एंटरिंग कॉलम। मतलब अब नेक्स्ट इटरेशन में S1 विल लीव द प्रॉब्लम, सो इट कैन बी कॉल्ड एज आउटगोइंग वेरिएबल, एंड X2 विल एंटर इनटू द प्रॉब्लम, इट विल बी इनकमिंग वेरिएबल। मतलब अब नया बेसिक वेरिएबल मिला X2, और S1 हो गया नॉन बेसिक, मतलब उसको सेट करेंगे 0 पर, और प्रॉब्लम अब X2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो आपका की एलिमेंट क्या हो गया, जो एंटरिंग कॉलम और लीविंग रो में कॉमन है, दैट इज 2 हियर। सो अब नेक्स्ट इटरेशन में देख लीजिए, X1 और S3 तो एज इट इज लिखा है, सिर्फ S1 को रिप्लेस किया X2 से, नया बेसिक वेरिएबल मिल गया। उन कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहां पर आ गए।
अब फिर से नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यूज कैसे पुट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला रो S1 रिप्लेस हो गया X2 से, और कैसे लिखना है, मैट्रिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस 2 को बनाना है 1, की एलिमेंट को हमको क्या बनाना है नेक्स्ट स्टेप में 1। वाई, ये है बेसिक वेरिएबल्स, तो उनके लिए मिलना चाहिए कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो X2 पहले आया तो उसके लिए फर्स्ट कॉलम मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये कॉलम क्या चाहिए, 1 0 0, तो 2 को बनाना है 1, तो पूरी रो को डिवाइड कर दिया 2 से RHS तक। अब ये बाकी के 2 एलिमेंट 0 बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 1, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो सेकेंड रो एज इट इज लिख दिया आपने। अब थर्ड रो में है 1, उसको 0 बनाना है इस फर्स्ट रो के एलिमेंट 1 की हेल्प से, तो ऑपरेशन सिंपली R3 माइनस R1। यू कैन सी द ऑपरेशन, 0 माइनस 0, then 1 minus 1, answer is 0, then 0 minus 1 by 2, so minus 1 by 2, then 0 minus 3 by 2, so it is 3 by 2, and last is 1 minus 0, that is 1, and RHS पर आ गया 6 minus 3, so answer is 3. So we are done with the third iteration also. अब ये देखना है कि फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करना है या नहीं। ठीक है, तो फिर से कंप्यूट किया Cj माइनस Zj रो। बेसिक वेरिएबल्स के लिए डायरेक्ट 0 लिख दिया, X2 X1 और S3 के लिए बाकी की 2 वैल्यूज हमको फाइंड करना है। तो मैं एक कॉलम के लिए आपको बता देता हूं, ये हो गया 2 इंटू 1 बाई 2 मीन्स 1, 3 इंटू 0 मीन्स 0, 0 इंटू माइनस 1 बाई 2 इज 0, तो आंसर आ गया 1 ZJ के लिए, उसको सब्सट्रैक्ट किया 0 से, सो CJ माइनस ZJ इज माइनस 1। सिमिलरली आप इस कॉलम के लिए फाइंड कीजिए, आंसर मिलना चाहिए 0। तो अब Cj माइनस Zj रो में कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट नहीं बचा। व्हाट इट इंडिकेट्स, दैट वी रीच द ऑप्टिमम, हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है ना। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अलजेब्रिक मेथड से कितने 5C3 सॉल्यूशंस थे, लेकिन यहां पे सिंप्लेक्स मेथड में अलजेब्रिक को ही मॉडिफाई किया, तो हमको सिर्फ 3 इटरेशन में आंसर मिल गया। अब आंसर क्या होगा, X2 इज इक्वल टू 3, X1 इज इक्वल टू 4, जो RHS पर वैल्यूज मिल रही है। S3 भी आंसर में मिला है, लेकिन हम आंसर सिर्फ नोट करेंगे डिसीजन वेरिएबल के लिए, स्लैक वेरिएबल आंसर का पार्ट नहीं होगा। सिर्फ डिसीजन वेरिएबल के लिए नोट करना है, X2 इज 3 एंड X1 इज 4, और ये Z मैक्स का आंसर हो गया, क्योंकि हमको Z को मैक्सिमाइज करना था यहां पर। इट इज 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, सो आंसर इज 18। ये आपको X1 और X2 यहां पे मिल गया है। क्वेश्चन में जो Z का इक्वेशन दिया है वहां पर पुट कर दीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। वी विल डिनोट इट बाय Z मैक्स, दैट इज द फाइनल और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। We will discuss this simplex algorithm one more time. What is the procedure to solve the problem? See the steps one by one. Write the given LPP in standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहले वो कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए। क्या है कैनोनिकल फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, RHS of each constraint should be non-negative and all decision variables should be restricted. ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ LPP। और उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, इनइक्वालिटीज को, कंस्ट्रेंट्स में जो इनइक्वालिटीज है उनको बनाना है इक्वेशंस। सेकेंड है राइट द वैल्यूज इन सिंप्लेक्स टेबल, देन आइडेंटिफाई द बेसिक वेरिएबल। तो सिंप्लेक्स मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप में बेसिक वेरिएबल्स होंगे हमेशा स्लैक वेरिएबल्स, मतलब जिनके लिए बन रहे हैं आपके कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Then compute the Cj minus Zj row and in this row identify the largest positive element. So you will get the new basic variable or entering column in next iteration. तो करस्पॉन्डिंग लीविंग रो या नॉन बेसिक वेरिएबल कैसे मिलेगा, अब हम कंप्यूट करेंगे रेशो, कैसे RHS को डिवाइड करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एंटरिंग कॉलम के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको नया बेसिक वेरिएबल मिल गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज कैसे पुट करना है, बाय परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशन। ये जो बेसिक वेरिएबल्स है इनके लिए आपको ऑब्टेन करना है कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस स्टेप के बाद फिर से Cj माइनस Zj रो कंप्यूट करना है, तो अब यहां से प्रोसीजर आपका एग्जैक्टली सेम हो गया। So we will repeat the procedure from step 4 to step 9 till all the elements of Cj minus Zj row becomes non-positive. तो जब तक एक भी पॉजिटिव एलिमेंट है हमको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और जैसे ही सब एलिमेंट्स हो गए 0 या नेगेटिव, सो वी रीच द ऑप्टिमम। तो RHS से हमको फाइनल आंसर नोट कर लेना है। दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व
give an LPP using simplex method. Next lecture, we will see the next method, begin method or penalty method. Thank you.